Fine. I'll just give you the game pin now. Okay. So your game pin is 214. I'll put it in the chat window. Devu joined. Shubh joined. Survi joined. Shaurya. Khushi. Harshul. And second Khushi. Okay, 7 of you. How many are present? 12. 12. Out of 12, Vedansh has joined from 2 devices. So 11 and 1 me, 10. Total 10 should be joining. 9 should be joining. Okay, so beginning with it, right? Here comes the first question. Which button is this? Okay, so that was the right align button. Let's move on to the next. Who's at the top? Goranj. Who's Goranj? Somebody new today? Ma'am, I am Goran Siddharth Okay. Basudev. Okay. Next. See, there is a word here. Vidalgo. Is it selected, italicized, highlighted? Quickly, 4 answer, 5, 6. That was italicized. It was slanting text, right? Next. Pushy at the top. Which one? I don't know. Next. That's a shortcut to make it bold. I hope you all can see your score. So pushy at the top. Next. Come on, quick, quick. 5, 6. Am I not getting the option of this question? This question option you didn't get. Maybe your network slow. Am I didn't? Again, Khushi stays at the top.
Okay, moving to the next one. Come on, everybody. Khushi is still at the top. I mean, it's good she's at the top. Control plus C. It's Control plus E. Who said C? C is for copy. Right. It's the middle. Left, right, center, and justified. We have 4 alignments. Okay, Khushi has got the highest answer streak. Okay, let's see the next. Control plus E. This is Control A, which is used for selecting everything. Still leading. I think Khushi is going to win today. She's learned everything. We used this button yesterday. Okay, now coming to the. Sorry, you moved ahead, but let's see. That's the last question. Let's see who's the top one. Purvi at third position, Shaurya second, and Khushi would be first. Ma'am, Yes, ma'am, Khushi is Anika Bhargav. Khushi is Anika Bhargav. Okay, Anika. Let me come back to the screen. Highlight this. Ma'am, in me, there's Harsh Bhargav. Who is who? Ma'am, Harsh Bhargav is Anika Bhargav. Harsh Bhargav is Anika Bhargav. But Khushi came first, na? So who is Khushi? There are 2 Khushis here. Ma'am, Anika Bhargav. My nickname is Khushi. Your nickname is Khushi. You are joined by the name Harsh Bhargav, right? Yes, And ma'am. you're saying you are Anika. I mean, I am not able to Ma'am, my understand. school name is Anika and my nickname is Khushi. Okay, okay. So you have won basically. Okay, fine. Chalo, let's move on to our Word document. Anybody who has not understood how to make the changes, we select and we use all these things to make changes in our document, right? Just a quick revision I'll show you. I'll make this normal. I want to change this font style. So go on this button. I make this monotype cursive. I want to change the size. So the size button. I mean, let's make it 28. I want to make it bold.
Now this bold is a toggle button. One time I click, you can see it's highlighted. My screen is visible. Yes. Yes, Okay. ma'am. So one time I click, it's highlighted. I will click another time and you can see the boldness has gone. Right, so it's a toggle button. These three buttons are called toggle button because you copy them, मतलब you click them one, तो एक बार आप करोगे तो effect apply होगा, and if you click on it again, the effect would be gone. Right, so ये bold हो गया, ये bold हट गया. So I make it bold. Italicize already है, so will not do underline. Right, now this is striking. If you want a line over the text, you can strike it with this particular button, लेकिन it's not required right now. So इसको बंद कर देते हैं. These two I'll just show you how to write superscript and subscript. Those who are learning maths and science, उनको पता होगा कि superscript, subscript क्या होते हैं. I'll just show you. But before that, this particular button, this will increase the font size. See, right? This is going to decrease the font size. Another way of doing the same thing. Fine. Now, can anybody tell me what is the in which font it is written? It is uppercase or lowercase? 40. No, size is 48, but see, we write in two ways. If you see my name here, it's written in capital letter. When we say capital letter, it means uppercase. Okay? When we talk about small letters, it's the lowercase. So you have uppercase and you have lowercase. Let's see that. See, if I type something like, if I type tree here, this is capital letter. If I write tree like this is the lowercase, right? And if I write a sentence, this is a tree, then this is sentence case because it is a sentence and the first letter is in capital. Fine. इसके अलावा if I write like this is a tree. Can you tell me what is different in this sentence and this sentence? Difference between two? Anybody who can notice? Anika, Yes, Anika. first, the second sentence, there is a capital letter, and in third sentence, there is two capital letters. Anika, no, that is not the difference. Anybody else who knows what is the difference? Ma'am. Yes. Ma'am, in the first sentence after this, every word is starting with small letter, and in the second sentence after this, every word is starting with a capital letter. See, I'll just tell you. This is called a title case. Title case means the first letter of every word in the sentence would be in capital. हर एक वर्ड जो भी आपके सेंटेंस में यूज हुआ है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होगा. दिस इज कॉल्ड टाइटल केस. ठीक है. इफ वी हैव गॉट अ सेंटेंस और हमें इसका केस चेंज करना है, कई बार बच्चे क्या करते हैं क्लास में, सपोज हम इस पैराग्राफ की बात करें, वो सारा का सारा कैपिटल में टाइप कर देते हैं, जबकि कैपिटल में टाइप कभी भी नहीं करा जाता. आई टोल्ड यू इन द फर्स्ट क्लास. ठीक है. सो इफ आई मेक इट अपर केस, कैन यू सी, सब कुछ कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया है, विच इज अ रॉन्ग वे ऑफ टाइपिंग. अगर मैं एक पैराग्राफ टाइप कर रही हूँ, मुझे हमेशा सेंटेंस केस में टाइपिंग करनी चाहिए. राइट. अब हाउ डू आई करेक्ट माई मिस्टेक? मोस्ट ऑफ द किड्स व्हाट दे डू, वो सारा का सारा डिलीट कर देते हैं, पर डिलीट नहीं करना चाहिए. क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये बटन है, इससे वी कैन मेक इट टू एनी केस. सो आई मेक इट सेंटेंस केस. ना इट्स अ प्रॉपर पैराग्राफ. ठीक है. अगर आपको कहीं पे अपने पूरा कैपिटल में लिखा है, लेट्स कन्वर्ट इट बैक टू कैपिटल. अपर केस में करूंगी तो सब कैपिटल में हो गया. ठीक है. अब इससे आपको लोअर केस में करना है, सो चूज लोअर केस. एवरीथिंग विल कम इनटू स्मॉल लेटर्स. फाइन. अगर किसी को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज चैट विंडो में लिखिएगा, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन यू टॉक इन अ ग्रुप. ठीक है. This is lower case.
हमने कौन कितने केस पढ़ लिए? 3 cases. Lower case is this one. If I shift and make everything capital, this is uppercase. And the third one is sentence case, where every sentence is beginning with a capital letter, and all the proper nouns, किसी का नाम होगा तो that can be in capital, but rest everything is in small letters. Next, Ma'am, your Microsoft spelling is wrong. which spelling is wrong? Yeah. Ma'am, where is this button? In this toolbar, this one. Okay, then you say capitalize each word, which means हर एक word का first letter would be converted into capital. See, this का T capital, इसका I capital, computer का C capital, workshop का W capital. Fine. So this is capitalize each word. And अब आप सबका एक बार नोट कर लो, this का T capital है, HIS small है, इसका I capital है, S small है. When I do toggle case, ये इसका रिवर्स हो जाएगा. अब क्या हुआ? T small हो गया और HIS capital हो गया. तो दिस इज टॉगल केस. जो भी कुछ अभी आपके टेक्स्ट का केस है वो उसका रिवर्स हो जाता है. अगर मैं वापस इस पे क्लिक करूंगी तो देखो क्या होता है. राइट, अगेन टी कैपिटल हो गया, HIS स्मॉल हो गया. सो यू हैव गॉट 5 काइंड ऑफ केसेस: सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस. एनी प्रॉब्लम विद दिस? अच्छा, अब इसके बाद कोई मुझे ये बता सकता है कि ये कलर क्यों आ रहा है, येलो कलर? वाई? Because you colored the text. Ma'am, because you use the highlighter. Yes, because I've used the highlighter. And where is the highlighter? This is the highlighter. So whichever color I choose and I drag over the text, the same color will get applied to my text. Fine. So that's why that color is coming. And this is highlighter, you can see. जैसा मार्केट में आपको हाइलाइटर मिलता है वैसे इसकी शेप हो गई है. अब आप इसको टेक्स्ट के ऊपर लेके जाओ, द टेक्स्ट वुड बी कन्वर्टेड इनटू दैट कलर. सो कभी भी आपको कुछ आपने एक रिपोर्ट लिखी और उसके बीच में प्रोजेक्ट बनाया, उसके बीच में कहीं पर आपको चाहिए कि मैं ये कलर ये वर्ड बहुत मेन है तो मुझे इसे हाईलाइट करना है, यू कैन ऑलवेज यूज द हाईलाइटर. फाइन. बट यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, मैंने हाईलाइटर नहीं यूज किया था, मैंने पैराग्राफ कलर चेंज किया था. So I'll just make it white. Fine. But highlighter से आप yes, अगर मुझे कंप्यूटर वर्कशॉप को हाईलाइट करना है, I can highlight like this. So when you are making project और आपको अपने कुछ major words को हाईलाइट करना है तो हाईलाइटर जैसे हम बुक्स के साथ अपना यूज करते हैं to highlight main points, you can use this. ठीक है? If you do not want any formatting, this is clear all formatting. तो सारी जो formatting हमने टेक्स्ट पे करी थी वो गायब हो गई है. Fine. That's the eraser kind of a thing. Okay, so अभी हमने क्या पढ़े? Cases which are of 5 types. ठीक है? We know the use of highlighter. Yes. Ma'am, I have a doubt. Yes. Ma'am, आपने yesterday आपने shift plus arrow बनाकर कुछ लिखा था. हाँ. Like this. You're saying this. Yes, ma'am. तो मैम ये कहाँ से आता है? वो मेरा कल आया नहीं था. आपके पास जीरो के पास एक की होगी, डैश. Yes, that. उसको दबाओ 2 बार. उसको एक मिनट. हाँ, 2 बार दबा दिया आपने. हाँ. और उसके बाद नीचे आपका जो एंगल साइन होता है ना, दैट्स क्लोज टू क्वेश्चन मार्क. शिफ्ट के बाद देखो सेकंड की एक आपको एरो दिख रहा है, ट्रायंगल टाइप्स.
ओपन 1 या ग्रेटर देन साइन वी से, तो शिफ्ट के साथ उसे दबाओ तो वो साइन आ जाएगा। Okay. अब यू प्रेस अ स्पेस बार, ऑटोमेटिकली इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दिस। Okay. ठीक है, Ma'am, space. अगर Yes. यस सुरभि, मैम इसको दबाकर वो एरो आ जाएगा। आप बस खाली टाइप करो और स्पेस बार दबा दो, उसके आगे चले जाओ, ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट हो जाएगा। हो गया? ओके, नाउ फिर हमने हाइलाइटर किया, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे वैसे वर्ड में बहुत कुछ सिखाने के लिए, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें एक्सेल और पावर पॉइंट भी सीखनी है। अभी 2 बटन और मैं आपको बता देती हूँ। ये है, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, और इसकी शॉर्टकट की क्या लिखी हुई है, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू। इफ यू सी माई स्क्रीन, दिस इज कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू इज द शॉर्टकट की। सबस्क्रिप्ट बाकी टेक्स्ट से ये नीचे आएगा। जैसे आपको लिखना है H2 प्लस O2, एक ये आपकी केमिस्ट्री में आती है, अभी छोटे बच्चों के लिए नहीं है पर फिर भी आप समझ लो। अगर मुझे ये लिखना है इक्वेशन, राइट लाइक दिस, रॉन्ग प्लीज। तो पहले तो मैंने टाइपिंग कर ली सारी, अब मुझे इस 2 को नीचे लेके जाना है नॉर्मल टेक्स्ट से, फाइन। तो आई कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस बटन, कैन यू सी what is happening? एंड इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, तो मैं कीबोर्ड से भी कर सकती हूँ, कंट्रोल इक्वल्स टू। दिस इज कॉल्ड सुपरस्क्रिप्ट। Ma'am, can you tell us one again for the subscript short form? कंट्रोल्स इक्वल्स टू, कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू, दिस इज सबस्क्रिप्ट। ओके, सेम वे अब हम मैथ्स की बात करें तो हम लिखते हैं x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो x2 माइनस y2 इक्वल्स टू x प्लस y एंड x माइनस y। जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनको मालूम होगा इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, अब मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, इसको स्मॉल x बना देते हैं। तो वी जस्ट सेलेक्टेड, इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर देती हूँ, आप सबको दिख जाएगा आराम से। तो अब इसको सेलेक्ट किया 2 को और सुपरस्क्रिप्ट बना दिया। एंड व्हाट इज द शॉर्टकट की, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू। ठीक है, सो मैं इसको कीबोर्ड से कर देती हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू। राइट, अगर यही इक्वेशन मेरी बार बार आ रही है एंड आई हैव टू डू द सेम थिंग अगेन, व्हाट आई कैन डू, आई हैव टू रिपीट द स्टेप अगेन एंड अगेन। क्या करना चाहिए मुझे, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग समथिंग? नो, आपको बार बार एक एक्शन रिपीट करना है। यस Ma'am, control Y. control y, yes, I can do this thing again and again by pressing control y. Suppose अब मुझे लिखना है z स्क्वायर और उसके नीचे लिखना है y स्क्वायर, फिर I want to write 5 raised to the power 3। अब बार बार करने से अच्छा है मैं यहाँ पर आऊँ, सिलेक्ट करूँ और I say control y, अभी control z कर देते हैं एक बार, shift equals to, फिर यहाँ आए अब कंट्रोल y कर दो, यू आर रीडूइंग द सेम थिंग विच यू हैव डन। तो कंट्रोल y इज फॉर रीडूइंग। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक आपका मैंने बता दिया क्या करते हो आप इस ब्लॉक में से। ठीक है, अब आपको कोई लिस्ट बनानी है, आपको टीचर ने बोला यू प्लीज क्रिएट। अब यहाँ पे एक और चीज देखो, मैं अभी टाइप कर रही हूँ लेकिन ये छोटा ही टाइप हो रहा है, इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल वन। व्हाई दिस इज हैपनिंग, क्योंकि जो चीज आपकी लास्ट में होती है उसकी फॉर्मेटिंग वो नेक्स्ट लाइन पे भी ले लेता है। तो मुझे कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू दोबारा दबाना पड़ेगा जिससे ये वापस अपने फॉर्मेटिंग में आ जाए, नॉर्मल वन। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू दबाया, इसके बाद जाओ और वापस से कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू कर दो।
नाउ मेरा सुपरस्क्रिप्ट फीचर ऑफ हो गया। ये सुपरस्क्रिप्ट है और ये यहाँ जो इसमें यूज हुआ है ये सबस्क्रिप्ट है। क्लियर है सबको? सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट हाउ टू डू इट? मैम मेरा नेटवर्क कनेक्शन की वजह से क्या आप एक बार रिपीट कर देंगे? ओके, आई टोल्ड देम हाउ टू अप्लाई सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट। पता है आपको क्या होती है? यस मैम, 2 को नीचे और 2 को ऊपर। हाँ, या so you can see my screen. Yes. This is subscript. How do we do it? By this button. Fine. अगर ये बटन नहीं यूज करना है तो आप सिंपली कंट्रोल इक्वल्स टू कर दो। सी आई एम प्रेसिंग कंट्रोल इक्वल्स टू, ये नॉर्मल हो गया, वापस प्रेस किया, ये सुपर सबस्क्रिप्ट बन गया। एक बार करोगे सब नॉर्मल हो जाएगा, एक बार करोगे तो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। तो भी योर माइक इज ऑफ। मैम समझ आ गया। ओके, एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू, या फिर ये जो बटन है यहाँ पे ये। और एनीवे व्हेन यू ब्रिंग योर बटन ऑन एनी ऑफ दीज, योर माउस ऑन एनी ऑफ दीज बटन्स, तो यहाँ एक छोटी सी टिप आती है जिसको टूल टिप कहते हैं, और उसमें सब कुछ एक्सप्लेन होता है कैसे करना है, शॉर्टकट कीज। ठीक है, अब मुझे एक लिस्ट बनानी है अपने क्लास के स्टूडेंट्स की। ठीक है, हाउ डू वी मेक, वी शुड बी राइटिंग द नेम। कैसे लिखते हैं? 1 डॉट एंड देन वी राइट द नेम ऑफ द चाइल्ड। सपोज पहले चाइल्ड का नाम ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। आई एम जस्ट राइटिंग एज इट इज, फाइन। अब ये तो ऑटोमेटिकली वर्ड ने आपके लिए जनरेट कर दिया है। सपोज दिस इज विदाउट नंबर्स, आई वांट टू पुट नंबर। Charya, you want to say something? Ma'am, can you please increase the font size? Yes. Is it fine? Yes, ma'am. Okay. अब हमने टाइप कर दिया। कभी भी जब आपको कोई लिस्ट टाइप करने के लिए बोलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो आपको कभी भी लिस्ट के आगे नंबर नहीं लिखना है। आपको आइटम लिखना है लिस्ट का, और फिर एंटर प्रेस करके, सेकंड एंटर प्रेस करके आप सारे आइटम लिखते जाओगे। ठीक है, अब इसके बाद you will select this all the item, और ये एक बटन है बुलेट्स का और दूसरा बटन है नंबर्स का। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे, यहाँ नंबर आ गए ऑटोमेटिक। टाइप नहीं करने होते नंबर्स। अगर हम टाइप करते हैं तो हमारा जो अलाइनमेंट है वो सारा बिगड़ जाता है, मतलब सही नहीं आता कभी भी। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? नंबरिंग बटन। ठीक है, अगर इस नंबरिंग को आपको नंबर अच्छे नहीं लग रहे, आप यू वांट एबीसी इन फ्रंट ऑफ इट, तो यहाँ अलग अलग स्टाइल के नंबर्स अवेलेबल है। आप नंबर ऐसे भी लिख सकते हो, आप नंबर एबीसी फॉर्म में भी लिख सकते हो, आप नंबर ऐसे भी लिख सकते हो। तो एनी वन वे विच यू लाइक, यू कैन रोमन नंबर्स भी लिख सकते हो, रोमन 1 2 3 4। अगर ये आपको अच्छे नहीं लग रहे और आपको यहाँ पे बुलेट्स यूज करना चाहते हो, बुलेट्स आर स्पेशल सिंबल्स, यू वांट डॉटेड लिस्ट, यू क्रिएट लाइक दिस। और ऐसी भी बुलेट अवेलेबल है। अच्छा, ये भी एक टॉगल बटन है। व्हाई आई एम सेइंग टॉगल, मैं इस पे क्लिक करूंगी चली जाएंगी, वापस क्लिक करूंगी आ जाएंगी। दिस अ टॉगल बटन। और कौन से टॉगल बटन पढ़े थे अभी हमने? Tell me, there were few buttons. Bold, italic, underline. Ma'am, bold, italic. And gold italic. Bold, italic, underline, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, सारे के सारे ये सारे आपके टॉगल बटन है। ठीक है, वन टाइम यू क्लिक इट विल बी देयर, नेक्स्ट टाइम यू क्लिक इट वोंट बी देयर। फाइन। अब बुलेट और नंबरिंग सबको समझ में आ गई? Yes, ma'am. वॉइस नहीं आ रही तो कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। अभी आ रही है?
Yes, ma'am, it is Yes, coming. ma'am, I can hear you. Yes, ma'am, you are audible. ओके, ये बुलेट नंबरिंग सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी पोयम लिख रही हूँ, अगर आप लोगों को आती है तो आप भी लिख लो। जॉनी जॉनी, यस पापा, सबको आती है? आई थिंक एवरीबडी वुड बी नोइंग। Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, will you share this word file on WhatsApp so that we can make notes of this? आई शेयर, बट इसमें कुछ भी प्रॉपर से नहीं लिखा हुआ है। Okay. आई शेयर। हु नोज दिस पोयम? Open your mouth. Yes, open your mouth. Ma'am, Fine. Ma'am, you write spelling wrong. Mara. You have written? Ma'am, can you repeat? मेरा connection नहीं आ रहा. तुर्दी, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमने ये पोएम लिखी है, जॉनी जॉनी यस पापा। ठीक है, अब मुझे इस पोएम को दोबारा से नीचे दोबारा लिखना है। व्हाट शुड आई डू? Ma'am, इसको सिलेक्ट किया, Ma'am, copy. कॉपी, Coin copy. Then control C and after that कंट्रोल सी, उसके बाद नीचे आए और Y. कंट्रोल वी, वी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल वी होता है। ठीक है, अब इसको मैं पूरा स्क्रीन मुझे करना पड़ेगा। अब सपोज करो आपके पास ये पोएम 3 बार लिखी हुई है, लेकिन आपको इसको स्टेयरकेस फॉर्म में लाना है। ठीक है, कैसे लाओगे? ये पहला पैराग्राफ यहाँ पर है, इसको सिलेक्ट करो और ये आपकी एक इंडेंट की होती है, इंक्रीज इंडेंट। क्लिक ऑन दिस पैराग्राफ विल मूव दिस साइड। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ, इसको और शिफ्ट करना है उधर। तो this is called indentation. You can move your text towards the right side or the left side using the increase indent button or decrease indent button. ठीक है, increase से your text will move to the right side, decrease से it will move towards the left side. This is how we indent. अब अगर इनके पैराग्राफ्स के, इन लाइंस के बीच में आपको स्पेस बढ़ानी है तो आप कहाँ जाओगे? ये लाइन स्पेसिंग के लिए है, कितनी स्पेस चाहिए? सी, दिस इज 3, दिस इज 2.5, दिस इज 2, 1.5, 1.5, 1.5, 1. So you can increase and decrease the space in between the lines. See? कर सकते हैं लाइन स्पेसिंग यूजिंग दिस। तो हम लाइन के बीच में भी स्पेस चेंज कर सकते हैं। कहीं भी कोई भी ऑप्शन आपको नहीं मिलता, यहाँ टूल बार में नहीं मिल रहा है, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस डाउन एरो। यहाँ एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ठीक है, यहाँ एक टेक्स्ट इफेक्ट्स भी होता है, अगर आप चाहते हैं आप इस कुछ लाइंस चाहिए आपको। ठीक है, सो दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द लाइन स्पेसिंग। हम पैराग्राफ्स को कलर भी कर सकते हैं। दिस इज पैराग्राफ कलर। तो इफ आई डू दिस, इट्स रेड कलर। ये कलर फॉन्ट के लिए है,
और ये आपके पैराग्राफ के लिए। अब आप चाहते हो कि आपने जो पोएम लिखी है इसके चारों तरफ एक या आपने जो पैराग्राफ लिखा था ऊपर इसके साथ एक बॉर्डर आ जाए, तो आप ये क्लिक करो और ये बॉर्डर बटन है, सी बॉटम बॉर्डर खाली नीचे आ रहा है, जैसे एक लाइन हम पेंसिल से ड्रॉ करते हैं अपनी कॉपी में, तो अब बॉर्डर ऊपर आ रहा है, ऑल बॉर्डर, चारों तरफ बॉर्डर आ जाएगा, राइट। दिस इज हाउ यू अप्लाई बॉर्डर। हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग इट राइट नाउ? कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ के साथ? मैम आए Ma'am, I. मैम आए मैम अनिका भार्गव। ओके, अनदर थिंग, अब आपने जैसे यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, इसको जो भी कुछ था मैंने इसको सब कुछ अप्लाई कर दिया, मुझे रेड कलर करना था, बोल्ड इटैलिक सब कुछ कर दिया। अब सेम चीज मुझे यहाँ अलका भार्गव पे भी करनी है। अब हाउ डू आई डू इट? क्या मैं दोबारा से सारे बटन प्रेस करूं या देयर इज अनदर वे? व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सेलेक्ट, ये एक फॉर्मेट पेंटर बटन है, ठीक है, इस पे क्लिक करो और आपका जो कर्सर है, एक मिनट, ये आपको पेंट ब्रश दिख रहा है, इट हैज बिकम लाइक पेंट ब्रश ना, जहां भी मैं इस पेंट ब्रश को ड्रैग करूंगी इसको वही फॉर्मेटिंग आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज लाइक इट, this is the format painter button. Shortcut key also you can see, but it's difficult, just forget it. You just remember this is the format painter button, which will copy the formatting from one place to another place. अब हम जब वर्ड में टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, सपोज यहाँ पे और दो बच्चों के नाम लिख देती हूँ, अनिका and Achanika is already written, Vedansh and Saksham. Maybe your spellings are wrong, forget it. See, तो अभी अगर स्पेलिंग गलत है तो ठीक है। मैम Yes. I know why it is coming red line on Okay. Why the red line is coming? names. Why is Ma'am, it because coming? I doesn't know our name. Ma'am, spelling mistakes. It's a spelling mistake. That's right. We will just yes. Coming. It is meaning. Ma'am, it is not spelling names. See why red line is coming, because in computer dictionary these words are not Computer there. doesn't know Yes. what name is ours. Yes. And even if computer knows your name, for computer it is a mistake because it's not there in its dictionary. Okay, that's why. We write names always come like this. Yes, any name you write, it will give a mistake. Until and unless we add it to the computer dictionary, हम add भी कर सकते हैं अपनी dictionary में words. अगर वो dictionary में है तो red line नहीं आएगा, ठीक है। So I was just showing you when I was typing, text automatically next line पर आ रहा है, मैं enter press नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अगर आपने enter press करके टाइपिंग करी तो आप जो ये अलाइनमेंट बटन यूज करोगे इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। So जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो बीच में एंटर करके नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना है, इट ऑटोमेटिकली मूव्स ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, see ऑटोमेटिकली खुद ही नीचे जा रहा है। एंड दिस फीचर that this automatically goes on to the next line, this is called word wrap. माइक किसका ऑन है? Please everybody put your mic off. Siddharth. Excuse me, ma'am. Yes. Mama, I have a class, so I can leave at 10:55. 9:55. Yes, ma'am. Sorry, ma'am. Can I leave at Yeah, 10:55?
You can leave. No issues. मैम Yes, Surbi. वहाँ पे फिर मैं फोटो दिखा दी थी जो आपने आज लिखा है। आज जो लिखा है मैंने कुछ लिखा नहीं है शायद. लेट मी शो यू. क्या लिखा है ये हम अभी यहाँ लिख देती हूँ मैं आज क्या क्या पढ़ा है. ठीक है. वी हैव डन. एक तो हमने ये पूछा था व्हाट इज टॉगल बटन राइट फ्रॉम बिगिनिंग इफ वी सी. फिर हमने सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट एंड शॉर्टकट कीज इनकी क्या थी. कंट्रोल प्लस इक्वल्स टू. and इसकी control थी plus यस shift plus equals to then all 5 cases. but not equal to my like this plus one Control. plus it is not सी equal. इसको करके देखते हैं. कंट्रोल शिफ्ट इक्वल्स टू सुपरस्क्रिप्ट, कंट्रोल इक्वल्स टू सबस्क्रिप्ट. फाइन. Okay, okay ma'am. 5 केसेस कौन से थे. अपर केस, Lower case लोअर केस और सेंटेंस केस और टॉगल and केस. title case and then title case. हाँ टाइटल. और यहाँ पे लिखा हुआ था इस पर्टिकुलर वर्जन में कैपिटलाइज ईच लेटर. इसको हम बोलते हैं टॉगल केस भी. सॉरी टाइटल केस. फाइन. तो हमने ये पढ़ लिया आज. हाइलाइटर या फॉर्मेटिंग. फिर हमने आज बुलेट्स का काम देखा कैसे बुलेट्स होती है. नंबर लिस्ट, हाउ टू क्रिएट. टाइम. फिर हमने बॉर्डर को बता दिया मैंने आपको. बॉर्डर अराउंड अ पैराग्राफ. लाइन स्पेसिंग. And increasing there and decreasing there. Ma'am, can you please the font size? I'll just do it. 1 minute. Let me type everything. What else? Anything else left? I think we did all this. So I'll just insert a page break so that everything comes on this. So that's today's job which you people have And done. bordering also. Yeah. Excuse me, ma'am. And border. Excuse me, ma'am. Yes, yes. Ma'am, tomorrow we also do the quiz. Yes, every day we will have a quiz. No Okay. issues. If I can frame 10 questions, then आज में से बन जाएंगे 10 questions, no problem. ठीक है. This is strike through. मैम आप नीचे कर दोगे स्क्रीन प्लीज.